ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس کی ہمارے پاس بڑی زندہ مثال نینوا کی، جو اسے پیچھے پڑھا گیا، یونان نبی کی کتاب، اس کا 30واں باب 5 آیت میں نینوا والوں نے اپنے آپ کو خدا کے حضور سرنڈر کیا تو خدا نے ان پر رحم کیا۔ اسی طرح دعا کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے بھی ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، جو ہماری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ تو اس کے لیے یسایہ نبی کی معرفت لکھی گئی کتاب ہے، اس کا 58واں باب، اس کی 34 صفحہ ہے۔ ہماری آواز جو عالم بالا پر سنی جائے۔ دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو، بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ شکریہ۔ ہماری آواز عالم بالا پر تب جا سکتی ہے جب ہم نیک نیتی سے خدا کے حضور روزہ رکھیں، تو ہماری آواز عالم بالا پر سنی جائے گی۔ خدا کو راضی کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس ایک زندہ مثال ہے، وہ یونان نبی کی کتاب میں لکھا ہے۔ نینوا والوں نے اپنا روزہ خدا کو راضی کرنے کے لیے کیا۔ اسی طرح خدا سے سیدھی راہ طلب کرنے کے لیے بھی ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس ایک مثال ہے، عزرا کی کتاب، اس کا 8 باب 21 آیت میں۔ عزرا کی کتاب، اس کا 8 باب 21 آیت۔ خدا کے زندہ کلام میں یوں لکھا ہے، تب میں نے ہوا کے دریا پر روزہ کی منادی کرائی تاکہ ہم اپنے خدا کے حضور اس سے اپنے اور اپنے بال بچوں اور اپنے مال کے لیے سیدھی راہ طلب کرنے کو فروتن بنے۔ شکریہ۔ اس میں کوئی آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ میں بھٹک چکا ہوں اپنے رستہ سے، اپنی زندگی سے، اسی طرح آپ پشیمان ہیں، وہ خدا سے سیدھی راہ طلب کرنی ہے، تو آپ روزہ رکھیں اور خدا سے دعا کریں تو خدا آپ کو سیدھی راہ دے گا۔ خدا سے مدد مانگنے کے لیے بھی روزہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ جیسے ایسا ہوتا تھا، روحانی جو جنگجو ہوتے تھے، جب لڑائی جھگڑے کیے جاتے تھے تو اس وقت بھی خصوصی طور پر خدا ان سے مدد طلب کی جاتی تھی۔ دوسری تواریخ، اس کا 20واں باب، اس کی 3 آیت میں واضح طور پہ لکھا گیا ہے، روحانی جنگجوؤں کو یعنی دعا سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ اسی طرح راست بازی کو قائم رکھنے کے لیے مکاشوہ کی کتاب، اس کا 22 باب، اس کی 11 آیت میں راست بازی کو قائم کرنے کے لیے مکاشوہ 22 باب، اس کی 11 آیت۔ جو برائی کرتا ہے وہ برائی ہی کرتا جائے، اور جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا جائے، اور جو راست باز ہے وہ راست بازی ہی کرتا جائے، اور جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے۔ شکریہ۔ اس میں راست بازی اگر آپ نے حاصل کرنی ہے تو خداوند کے حضور روزہ رکھیں اور اسے آپ طلب کر سکتے ہیں، تو خداوند آپ کو راست بازی دے گا۔ اسی طرح خداوند کی پناہ حاصل کرنے کے لیے اگر ہم خدا سے پناہ چاہتے ہیں، یعنی خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا، یسایہ 58واں باب، اس کی 8 آیت میں آپ پڑھیں گے، اور اس میں صاف واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے کہ خداوند کی پناہ حاصل کرنے کے لیے خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا۔ یسایہ نبی کی کتاب 58واں باب، اس کی 8ویں آیت۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، جب یسایہ 58 باب، اس کی 58واں باب، ہاں جی، 8ویں۔ تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی، تیری صداقت تیری ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا۔ شکریہ۔ اس میں خداوند کا جلال
क्या होगा, तेरा चित डबल होगा। सेहत की तरक्की के लिए भी आप रोज़ा रख सकते हैं। इसी तरह रोज़े के अजर रोज़े का क्या है? अगर हम रोज़ा रखते हैं तो उसका कुछ फ़ायदा भी होता है कि नहीं होता। तो कलाम मुक़द्दस इसके बारे में क्या कहती है? सबसे पहले रोज़े का बदला क्या है, रोज़े का अजर क्या है, उसके लिए एक हवाला पढ़ेंगे मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 6वां बाब उसकी 18 आयत में। ये हमारे लिए एक खास मकसद है रोज़े का। ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो खुशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो खुशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। शुक्रिया। अगर हम रोज़ा रखते हैं तो खुशीदगी में तो खुदावंद उसका अजर जरूर देता है। फिर उसके लिए खसूसी तौर पे ईसाया की मार्फत लिखी गए किताब उसमें 58 बाब 6 से 11 आयत में, इसमें तेरी आवाज़ आलम बाला पर सुनी जाए। अगर हम आप जानते हैं कि हमारी आवाज़ खुदावंद के हजूर पहुँचे तो उसके लिए भी ये सारी यसाया में लिखा गया है 58 बाब 6 से 11 आयत तक, इसमें खास लिखा गया है तेरी आवाज़ आलम बाला पर सुनी जाएगी, तेरी रोशनी सुबह की मानद धूप निकलेगी, तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी, तेरी सदाकत तेरा हरावल, खुदाम का जलाल तेरा चंडावल होगा, तेरा नूर तरीकी में चमकेगा, तेरी तैरगी दोपहर की मानद होगी, खुदाम सदा तेरी रहनुमाई करेगा और खुशहाली में तुझे सेहत करेगा, तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा, तू सैराब बाग की मानद और चश्मा की मानद जिसका पानी कम ना हो। ये है खुदाम का मकसद। सो रोज़ा अगर इसको और भी बयान किया जाए तो बहुत है, लेकिन मैं खुदाम का शुक्र करता हूँ कि रोज़ा जिस तरह भी है, मैं चाहूँगा एक छोटी सी एक रवायत सुनाना चाहता हूँ जो हम सबके लिए है कि क्या हमारे में बर्दाश्त भी है कि नहीं। अगर हम में बर्दाश्त होगी तो कोई भी काम हम अगर शुरू करेंगे तो आपके लिए कोई मंजिल मुश्किल नहीं है, आसान उसको हल करने के लिए। हमारे बहुत सारे मुल्क में भी और दुनिया में भी बहुत सारी मिसालें हैं। इसके लिए एक मिसाल मदर टेरेसा की है। उसने खिदमत के काम को शुरू किया और पुख्तगी से हर सख्ती गर्मी को उसने बर्दाश्त किया और आज उसे पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसी तरह निज़ाम के बारे में डॉक्टर जो भी उसने अपने आप को यहाँ वक्त किया और निज़ाम को खात्मे का सबब बनी। कीदी आपके सामने एक मिसाल है। उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने अपने आप को तैयार किया और आज पूरी दुनिया में कीदी का नाम है। एक बड़ी मिसाल है नेल्सन मंडेला की। उसके बारे में जो बयान किया गया है कि नेल्सन मंडेला जो था, जब वो अपने मुल्क में था वहाँ हुकूमत गोरों की थी, काले जो थे वहाँ रहते थे, हब्शी जो थे, लेकिन हुकूमत गोरे करते थे, वो चंद थे और काले सारे पूरी वहाँ साउथ अफ्रीका में कालों का राज है। जब उसने इसको शुरू किया कि हमारी कालों की हुकूमत हो और अभी नाम लेता था तो क्या होता था, जो भी उसके साथ शामिल होते थे उसको वो पकड़ लेना पुलिस से और उन्हें अज़ियत दे दी और बुरी तरह अज़ियत देते थे और वो पुख्तगी के साथ लगा रहा और उसने चोरा ली। अगर तंगी मुसीबत हम बर्दाश्त करें तो हम मंजिल को कबूल कर सकते हैं। और एक वक्त वो सफ़र कर रहा था, उसके साथ सिक्योरिटी थी और वो जब
साउथ अफ्रीका का बादशाह बना, 40 साल वो कैद तन्हाई काटी उसने। उसके बाद जब उस मुल्क का सदर बना, वो जा रहा था अपने पास, वो अपनी रोटी अपने पास रखता था। सदर बनने के बावजूद भी अपने पास उसकी अपनी रोटी होती थी। वो एक होटल में खड़ा होता है और उस वक़्त जो एक सुपरिटेंडेंट होता है जेल का, वो भी उसी होटल में खाना खा रहा है। अब जो इसका सिक्योरिटी वाला होता है उसको कहता है कि उस आदमी को बुला के लाओ। वो उसको बुला के लाते हैं। जब वो उसको बुला के लाते हैं तो उसकी लातें ऐसे ऐसे टांगे कांपनी शुरू हो जाती हैं, वो कांपना शुरू हो जाता है। वो उसके नवाला अंदर नहीं जाता, वो बड़ा परेशान होता है। सिक्योरिटी वाला कहता है, सदर साहब ये जो है ये बीमार है। वो कहता नहीं ये बीमार नहीं है। उसके बाद वो चला गया। वो उससे पूछता है कि इसको रीजन क्या है। वो बताता है कि रीजन असल ये नहीं है, रीजन ये है कि जब ये बरसर इक़्तिदार था, जेल का सुपरिटेंडेंट था, मैं उससे पानी तलब करता और वो मेरे मुंह में पेशाब करता था। अब मैं इस मुल्क का सदर हूँ, अब उसे ये खौफ है कि ये उस वक्त का मुझसे बदला न ले, लेकिन मैं ये सब चीज़ें अपने आप में जज़ब कर चुका हूँ, मैं बदला लेने के लिए नहीं। जैसे खुदा यीशु मसीह ने हर कुव्वत सख्त रखने के बावजूद हमारे लिए ये एक नमूना छोड़ा। हम क्या करें? बर्दाश्त करें। यहाँ क्या होता है, यहाँ अगर मैं थोड़ा सा इल्म हो तो हम क्या करते हैं, हम कुछ फैमिली फंस जाते हैं। कुछ फैमिली जो होती है वो एक बीमारी है। हमें मसीह में खास बात जो बताई गई है वो ये है कि जो अपने आप को अफजल करना चाहता है वो क्या करे, वो खादम बने। खादम जो है, खुदा यीशु ने हमें एक नमूना दिया। उन्होंने खुद पाँव पकड़े, पाँव धोए, ना सिर्फ पकड़े बल्कि धोए। हमारे लिए भी आज ये मिसाल है कि हम क्या करें, अपने आप को कमतर बनाएं। अगर हम अपने आप को कमतर बनाते हैं तो खुदा आपको क्या करेगा, सरफराजी देगा। सरफराजी इसी में पिन्हा है, ये नहीं है। क्योंकि जो तनावर है अपने आप को सख्त करता है वो टूट जाता है। खुदा आपका शुक्र करता है।